sole trader dealing in sports items from the following transactions pass journal entries for the month of March 2018. Okay. Now what is given over here? March, you have the dates March 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 is given, and then you have different accounts. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे? Now I have just copied yesterday's accounts यहाँ पे, ledger accounts. चलो, so we are writing this ledgers in the books of Chandran, right? And we have different, अभी यहाँ पे accounts को मैं rename करूँगा according to what is required. ठीक है? Capital शायद होगा. Okay. So yes, I hope my screen is visible. सबको दिख रहा है बराबर से? So let us take the first transaction. Commenced business with cash 4 lakh. Commenced business with cash 4 lakh. तो journal entry बोलिए फटाफट. Journal entry बोलिए, हम लोग ledger posting कर देंगे. Commenced business with cash 4 lakh. Quickly. Commenced business with cash 4 lakh. Journal entry would be cash account. Yes. Jaldi. What should be the journal entry first? Cash account debit to, yes, cash account debit to capital. Correct? Cash account debit to capital. तो इसको हम लोग पोस्टिंग कैसा करेंगे? कैश अकाउंट में लिखेंगे. अच्छा, पहला कैपिटल बनाया, फिर कैश, थोड़ा बड़ा ये बना दें, कैश अकाउंट. वेरी गुड. कैपिटल में आएगा बाय कैश. The date being 1st March. Right, 1st March, amount being 4 lakh. Right, by cash 4 lakh. Yes, and cash account meant to capital. Absolutely, cash account meant to capital. So next is cash deposited into bank. Cash deposited into bank entry. Bank is the personal account. Bank is the receiver. Cash is going out of the business. Cash is going out. Yes, absolutely. Yes, Pratham, that is correct. Other also entry quickly. Nahi, Palak. Cash is going out, right? Cash is going out. So credit what goes out. Bank is the receiver. So bank account debit. Bank to cash, right? Bank account debit to cash. Yes. So यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बना देते हैं. या तो बैंक के लिए शायद ज़्यादा स्पेस नहीं. Okay, ठीक है.
So bank account debit to cash account और कैश में बाय बैंक account. चलो नेक्स्ट. Purchased goods from Ravi and payment made through net banking. Purchased goods from Ravi and payment made through net banking. So what are the two accounts that will come here? Okay, यहाँ पे ज़्यादा accounts हैं. Yes, correct. Palak, be clear. Okay, Om, this is a bit wrong. Yes, entry is correct, Prince. Okay, mostly तो सारे bank transactions हैं यहाँ पे. यस, सो यहाँ पे पहली बात तो दो अकाउंट्स कौन से हैं? परचेज गुड्स, तो हमने परचेज किया गुड्स एंड रवि मेड द पेमेंट, राइट. हाँ, रवि का अकाउंट कब आएगा? जब वहां पे यू कैन से अभी तक पेमेंट बाकी है, तो अभी उसने पेमेंट कर दिया ना, so what will come? If he has made the payment, will Ravi's name come there? No. Purchase account debit to bank account. सीधा पैसा दे दिया ना, बैंक 90,000. The name of the person will come only when a future transaction is to be done with him. Ravi has settled it on the same day, right? तो क्या करेंगे? Purchase account debit to bank account. Purchase account debit to bank. आप एक बनाइए purchase account. Very clear, Palak. What was the amount? Okay. Correct. 90,000.
think there is some lag. Just a minute. So which screen are you able to see now? Excel or Excel? Okay. Yeah. Now is it visible? Now is this question visible? Is the question visible now? Question. हाँ. Okay. चलो ठीक है. So ये हो गया purchase goods from Ravi and payment made through net banking. Now sales made to Kumar who deposited the money through CDM. Yeah. CDM. Yeah. CDM. Even I am not too sure about what CDM is, but it is something like cash deposit. Yeah, cash deposit machine. Cash deposit machine. Okay, cash deposit machine. Okay. Yes. So I am selling to Kumar, who is depositing the money through cash deposit machine. So yes. So again, it's a bank transaction that we are making. So mostly यहाँ पे bank transactions here. So sales made to Kumar, who deposited the money through CDM. I will write. He is again paying the money. So I'll write bank account debit to sales. Bank account debit to sales. Amount is 10,000. Right? Amount is 10,000. Okay, बैंक टू सेल्स. सेल्स में यहाँ पे बनाऊंगा एक सेल्स अकाउंट. सेल्स में आएगा 4th March बाय बैंक अकाउंट. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे भी कुमार का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे रवि का नाम नहीं आएगा. नेक्स्ट इज सेल्स मेड टू विवेक हु मेड द पेमेंट बाय डेबिट कार्ड. सो अगेन दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. Sales made to Vivek who made the payment by debit card. So again sales, payment is through debit card. So again it is a bank transaction. Entry आएगा, क्या entry आएगा? Yes, again is the same as the previous one. Bank account debit to sales. Bank account debit to sales. So bank account. Amount being 60,000. And sales में I'll write again by bank. Next one is also kind of similar. Sold goods to Kirtana who made the payment through credit card. 50,000.
Now, what's a credit card? So should I? Acha. Yes, correct. But the only point is credit card. Should I write the entry right now? Should I write the name of Kirtana because it's credit card? No? Is Kirtana paying at the same time when she's swiping the card? No, it's a credit card. No. So if Kirtana is swiping the card, is she paying it at the same time? क्रेडिट पेमेंट है तो क्रेडिटर का नाम आएगा. ओके. Yes. Okay. No. So the point is, she will pay it later. She will pay it later, but we will receive at the same time. Correct? Palak, understand this. जब क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप होता है, हम कौन है? We are चंद्रन. Correct. We are Chandran, and we are writing about Chandran. Now, when Kirtana swipes that credit card, her account is not debited at the same time, but my account gets credited because her bank pays me. Then she will have to pay her bank. तो उसका पैसा तभी जाता नहीं है. That's true, but मुझे पैसा तभी ही मिलता है. Yes, and for me, Chandran, my account is getting settled, so I don't care, isn't it? So the entry will be same. Bank account debit to sales. So just because there is credit card, don't get confused. Amount is कितना है? 50,000. Okay, so bank account debit to sales. Again, 6th March. Next. Dividend directly received by the bank. Dividend cash money मिला, dividend बैंक में चला गया. Which are the two entries? Yes, bank account debit to dividend. Dividend is an income, so in credit all incomes and gains. So credit bank, credit dividend, or bank is the receiver, so bank account debit. So bank account debit to dividend. अमाउंट कितना था? Okay, 2000. डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट. Next,
money withdrawn from ATM. Money withdrawn from ATM. Rupees 3,000. Entry बोलो जल्दी. Money withdrawn from ATM. Yes, Alak. To bank is correct, but what to bank? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं हो पाएगा. ओके. यस करेक्ट पलक. ओके दैट इज करेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में जो पैसा आएगा, मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ बैंक से, तो बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. क्या आ रहा है? कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट. नाउ दोस वर सेइंग द two of them, I think Pratham and Prince. Okay. You are saying drawings account. Yes. But drawings account, if the cash is withdrawn for personal use by the owner, then I can say it is drawings. Yes. तभी आपका पॉइंट एकदम बराबर है. बट वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ कैश विड्रॉन लिखा है, तो वी विल अज्यूम इट इज फॉर द बिजनेस. तो अगर कैश बिजनेस के लिए विड्रॉ किया तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर यहाँ पे लिखा होता कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय चंद्रन फॉर हिज ओन यूज, ऐसा कुछ अगर लिखा होता तो मैं ड्रॉइंग्स टू बैंक करता, बट यहाँ पे वैसे करने की जरूरत नहीं. ओके. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. वेरी क्लियर. कैश टू बैंक, बैंक में बाय कैश. चलो नेक्स्ट फटाफट करते हैं. सैलरीज पेड थ्रू ईसीएस. व्हाट इज ईसीएस? It is kind of where you give a standing instruction that a particular amount is to be paid or bill is to be cleared every month. Automatically deduct होता है आपके अकाउंट से. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. Yes, it is electronic clearing system. So जो ये अगर आप जनरली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये सब चीज का ईसीएस करते हैं, मतलब क्या कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से आपका बिल का अमाउंट डेबिट हो जाएगा every month. You don't have to keep a tab. That is nothing but ECS. So salaries are being paid through ECS. Yes, salaries are being paid through ECS. तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस हो रहा है सैलरी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट. पैसा कहाँ से जा रहा है? सीधा सीधा बैंक अकाउंट से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट. सो एंट्री वुड बी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक. सैलरीज अकाउंट डेबिट टू. तो बैंक में बाय सैलरीज, अमाउंट कितना था? 6,000. Okay. बाय सैलरीज अकाउंट 6,000 और एक सैलरीज अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, और वहां पे 9th March बैंक. ठीक है. लास्ट एंट्री
cricket bats donated to a trust. अब ये क्या है? Cricket bats donated to a trust. Not at all. Not at all. चैरिटी अकाउंट नहीं होता, डोनेशन अकाउंट होता है, तो हम लोग उसको डोनेशन बोल सकते हैं. ठीक है, डोनेशन. ओके. एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर सेइंग बैंक अकाउंट डेबिट, मैं पैसा थोड़ी दे रहा हूँ बैंक से, मैं तो क्रिकेट के बैट्स डोनेट कर रहा हूँ. या इट्स ओके. तो मैं क्रिकेट के बैट्स डोनेट कर रहा हूँ. सेम पलक, नहीं, आई एम नॉट गिविंग मनी ऑल्सो. अच्छा, तो ऐसा है क्या कि मैंने क्रिकेट के बैट्स परचेज किए और दे दिए, तो मैं शायद बोल सकता हूँ कि हाँ, कैश अकाउंट वहां पे चला जाएगा क्योंकि मैंने क्रिकेट के बैट्स परचेज किए, स्पेशली डोनेट करने के लिए क्रिकेट के बैट्स परचेज किए, लाइक फॉर एग्जाम्पल. हाँ, दैट इज मेकिंग मोर सेंस, बट फिर भी बराबर नहीं है. फिर भी बराबर नहीं है, थोड़ा सोच के देखो ना. मेरा अगर बिजनेस है नॉर्मल, और मेरे से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, और मेरे पास मैं कुछ गिफ्ट्स डोनेट करना चाहता हूँ. सो अगर मैं मेरे बिजनेस का पैसा यूज करता हूँ और कुछ समझ लो क्रिकेट बैट्स परचेज करके दे देता हूँ, तो वहां पे एंट्री आ जाएगा. आई मीन वहां पे दो अकाउंट्स होंगे, डोनेशन एंड कैश, बिकॉज आई एम यूजिंग द कैश ऑफ माई बिजनेस फॉर बाइंग दोज क्रिकेट बैट्स एंड गिविंग इट टू द डोनेशन. बराबर है. वहां पे क्रिकेट बैट को कोई मायने नहीं रखता है. बट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, Chandran is a sole trader dealing in sports items. So we can assume here that cricket bats are not what I have purchased especially for gifting. It is part of my goods that I am gifting it to the trust. ये आपको थोड़ा सा assumption basis है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि if you are dealing in sport items, it's an assumption. This is very peculiar. आपको मतलब आपका ध्यान जाना चाहिए ऐसी जगह पर. तो वहां पे मैं बोलूंगा कि क्रिकेट बैट्स इज नथिंग बट पार्ट ऑफ माय गुड्स व्हिच आई एम गिफ्टिंग. हाँ, नाउ दैट इज करेक्ट प्रथम. सो अभी किसी ने बोला पलक, वेरी गुड, गुड्स एंड डोनेशन. आई थिंक यू नोटिस्ड इट, गुड्स एंड डोनेशन, बट योर दिस इज रॉन्ग. गुड्स टू डोनेशन या डोनेशन टू गुड्स है, राइट. व्हाट इज डोनेशन फॉर यू? डोनेशन क्या है फॉर चंद्रन? व्हाट इज डोनेशन फॉर चंद्रन्स बिजनेस? व्हाट इज डोनेशन? It's a loss. It's a loss. It's an expense. It is not income, definitely not. It is not an asset, and it's certainly not a liability. क्योंकि चैरिटी में दिया, कुछ लोग उसको असेट सोचते हैं, बट समझो ना, ये असेट नहीं है. असेट का मतलब क्या? आपने चैरिटी में दिया बराबर है, बट वो आपको वापस मिलने वाला है क्या? नहीं, वो गया, गॉन. It's a loss. It's an expense. So donation account is an expense, so has to be debited. Donation account debit. हाँ, exactly. Donation account debit to goods account. Yes, donation to goods. Goods to donation नहीं, donation to goods. But now the point arises, हम लोग बोलते कि भाई goods मत लिखो, या तो purchases लिखो या तो sales लिखो.
yes, yes, exactly, Palak. We have to consider it as goods. तो पहले तो मैं एक डोनेशन अकाउंट बना लेता हूँ. So what should I write? Purchases, sales. Sir, we can say it is assets because if he does not donate का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, because he has donated. He has donated. Okay, right. Palak, your thinking I like, because eventually the goods are going out, so we should write sales. Yes. Now, your point is correct. कभी भी अगर क्रेडिट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि जब यस यस प्रिंस, जब गुड्स आते हैं तो हम बोलेंगे परचेजेस, जब गुड्स जाते हैं हम बोलेंगे सेल्स. या ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं? जब गुड्स आते हैं, मतलब हमने सेल किए हुए गुड्स वापस आते हैं तो हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न. जब उल्टा होता है, परचेज किए हुए गुड्स बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं परचेज रिटर्न. ये चार ही टाइप के हमने गुड्स सुने. बट देयर आर इवन अ वैरायटी ऑफ गुड्स which are unusual categories where there is unusual loss of goods. जैसे ये हो गया डोनेशन. दूसरा होता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, विच इज लाइक आप जो रास्ते में आपको दिखता है कभी कभी कोई स्टॉल लगा के अपने गुड्स फ्री में बांटता रहता है. So that is kind of advertising. So that is promotion purpose, absolutely. So that is also goods going out of the business. Goods which are lost by fire, fire हो गया, goods जल गए. Again, goods are going out. But sales is not happening. Sales return is also not happening. Even purchase is not happening. But goods are going out. Lost by fire, lost by theft, कोई चुरा के चला गया goods. हाँ, डैमेज हो गया, goods damaged. तो ऐसे केस में वहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डोनेशंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as free samples, or you can write it as by goods given as donations. ऐसा आप लिख सकते हो उसको, बट इवेंचुअली आपको उसको कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा. गुड्स अकाउंट करके हम बनाते नहीं है. तो वेयर शुड आई राइट इट? परचेज और सेल्स. इफ आई गिव यू टू ऑप्शंस, परचेज और सेल्स, और आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, तो परचेज में डालोगे या सेल में डालोगे? यस प्रिंस, मैंने बोला आपको क्रेडिट साइड में डालना है उसे. ठीक है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट वी हैव टू पुट इट इन परचेजेस. हाँ, ये ऐसे पिक्यूलियर जगह है जहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट में जाता है. जस्ट टू नलीफाई दीज थिंग्स, क्योंकि हम दो ही अकाउंट बनाते, परचेज और सेल. तो यहाँ पे हम उसे परचेज से निकाल देते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं, मतलब वी डोंट ट्रीट देम एज परचेजेस एनीमोर. यस, इसके लिए अलग अकाउंट भी बना सकते हैं हम लोग, नो डाउट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट ऐसा. बट गिवन अ चॉइस परचेज और सेल्स, वी हैव टू पुट इट इन परचेजेस अकाउंट इवन दो इट इज क्रेडिट एंड नॉट इन सेल्स अकाउंट. द रीजन बीइंग यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स जो बाहर जा रहे हैं उसका मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ. Okay, I'm not very well aware of that, since I don't know about it out. I'll get back to you if there is any. Okay, so now the point arises, now why purchase and why not sales? If the question is why purchase, why not sales? So अगर मैं एक चीज 10 रुपए में खरीदता हूँ और उसको नॉर्मली 15 रुपए में बेचता हूँ, right? I purchase this is I purchased.
The good is with me. I sell it at 15 normally, but this is my stock, right? ये मेरा stock है. Yeah, you can just read. Cricket bats donated to a trust. Okay. Fine. Okay. So the point is, I purchase it at 10. I sell it at 15. This is purchasing. This is selling price. आया वो 10 रुपए में मेरे पास स्टॉक बन के. Now this stock itself I distributed as free samples. Free में दे दिया. Free. डोनेशन दे दिया. फ्री में दे दिया. जल गया, कुछ भी हुआ, चोरी हो गया, whatever. Can you tell me the amount of loss that I faced? Because the goods were no. पलक, मैंने गुड्स 10 रुपए में खरीदा और बेचा ही नहीं, तो हाउ कैन यू से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट? ना, सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट तो ज्यादा है. सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा. देखो 10 रुपए में अगर मैंने खरीदा और 15 में बेचा तो 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, बट मैं बेचा नहीं, वो फ्री में दे दिया. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माय लॉस? Is it 10 or 15? It is 10. My loss is 10. हाँ, अगर मैंने उसको बेचा 8 रुपए में या 9 रुपए में और 1 रुपए का लॉस हुआ तो मैं उसको सेल्स बोलता हूँ. लॉस में बेचा इसका मतलब, पर जब बेचता हूं तभी सेल्स बोलूंगा. एंड वी ऑल्सो नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट. यस, मैंने शायद आई थिंक बीआईएम स्टूडेंट्स को जब मैंने सिखाया मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये याद होगा. आई एम प्रीटी श्योर बीबीआई स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन taught by नीरव सर. व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? यस, व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? अगर मैंने 10 चीज खरीदा 5 रुपए में, परचेज किया 50 रुपए का परचेज. दूसरा समझ लो मैंने बेचा 6 यूनिट्स से नहीं, हाँ चलो, मैंने 6 यूनिट्स बेचा 8 रुपए पर यूनिट में. 8 रुपए पर यूनिट में, टोटल अमाउंट बीइंग 48. Did I suffer profits? Did I suffer losses or profits? 50 रुपए का परचेज है, 50 रुपीज परचेज, 48 रुपीज इनकम. प्रॉफिट और लॉस? These are number of units and this is the rate. 10 units purchased for 5 rupees per piece, 6 units sold at 8 rupees per piece. प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? Yes, only one person is answering again and again. Okay. Yes, Prince, I got your point. Arun, yes, okay. Other also, profit हुआ लॉस हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी. सोच रहे. तो always remember, it is profit. It is profit. Units not matching, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रथम,
It is a profit. No, I purchased 10 units for 5 rupees per unit. I am selling 6 units for 8 rupees per unit. So 4 units are still there with me, which I can sell later on. So my cost is actually only 30 rupees because 6 units जो मैंने बेचा उसका कॉस्ट कितना है 6 into 5 30 rupees और उसको मैंने 48 में बेचा तो 18 रुपए प्रॉफिट. सिमिलरली तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करते कि जितना मैंने सेल किया उतने के लिए जो कॉस्ट लगेगा उस हिसाब से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं. अब यहाँ पे यही अज्यूम कर लो ये जो 4 यूनिट्स है जो मैंने नहीं बेची, समझ लो यही 4 यूनिट्स मैंने डोनेट कर दी. तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में ये 4 यूनिट्स का कंसिडरेशन होना चाहिए क्या प्रॉफिट और लॉस में? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्स के साथ हमें प्रॉफिट्स को ये करना है, मैच करना है. सॉरी, सेल्स के साथ परचेजेस को मैच करना है, कॉस्ट को मैच करना है. सो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि these 4 units if they are going for free I should reduce these 4 units from purchases. मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने सिर्फ 6 यूनिट्स परचेज किया, मतलब अज्यूम ऐसे नहीं, मैंने 10 यूनिट्स परचेज किया बट 4 दे दिया परचेज कॉस्ट में से. दैट इज द रीजन व्हाई. इतना बोलने का तात्पर्य ये था कि क्रेडिट साइड में परचेजेस अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा. सेल्स तभी आता है जब हम एक्चुअली पैसा लेके बेचते हैं. लॉस में बेचेंगे तो भी सेल्स आएगा, बट यहाँ पे मैं बेच नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे डोनेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे चोरी हो रही है, यहाँ पे आग लग गई है, whatever is happening. If I'm not selling the goods but the goods are going out, in that case, even though it is a credit side, I will write purchases account, I will not write sales account, or I can create a new account with the name of what it is. तो फिलहाल के लिए हम लोग कहाँ पे डालेंगे? Purchases account. So donation account debit. To purchases. Amount being कितना अमाउंट था? 10,000. परचेजेस में डाल देंगे by donations account. Am I very clear? ओके, अब सब चीज को टैली करेंगे फटाफट. कौन सा अकाउंट टैली नहीं होगा? कौन सा अकाउंट टैली नहीं होगा मतलब बैलेंस किसका नहीं आएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. मैं आपको सारे अकाउंट्स एक साथ शायद दिख जाए. नहीं, बहुत छोटा. हाँ, नॉमिनल अकाउंट्स का. तो कौन से नॉमिनल अकाउंट्स है यहाँ पे? कैपिटल, बैंक, परचेजेस, कैश, सेल्स, डिविडेंड रिसीव्ड, सैलरीज, डोनेशंस. इसमें से कितने सारे नॉमिनल है? परचेज, सेल्स. ओके, और ज्यादातर नॉमिनल ही है. परचेज है, सेल है, डिविडेंड रिसीव्ड है, सैलरीज है और डोनेशन है. यस, ये सारे क्या है? नॉमिनल है. बाकी सारे पर्सनल या तो रियल. कैपिटल इज पर्सनल, बैंक अकाउंट इज पर्सनल, कैश अकाउंट इज रियल, बस. बाकी सारे नॉमिनल. तो इसको हम लोग फटाफट कर देंगे. टोटल 4 लाख, 4 लाख, यहाँ पे डिफरेंस 4 लाख. ऑन द लास्ट डे, मार्च का लास्ट डे है तो 31st मार्च. आई विल राइट टू बैलेंस राइट. नेक्स्ट बैंक अकाउंट. देखते हैं कौन सा साइड बड़ा है. ऑब्वियसली डेबिट साइड ज्यादा बड़ा दिख रहा है. I'll just take the total of it. It comes to 4,22,200. Sorry, 4,22,000.
यहाँ पे भी जाएगा 4,22,000 on 31st March by balance carried down. This is 99, so it will be 323. Next, purchases account. Purchase account total is 90,000. बड़ा साइड 90,000 है, तो डिफरेंस है 80,000. What should I write there? What should I write by? Balance लिख दूं क्या? नहीं. I will write by trading account. By trading account. चलो, cash account can have balances. So this is 4,03,000. This is also 4,03,000. Difference being 1,03,000 on 31st March by balance carried out. Sales का बैलेंस आएगा क्या? Yes, no? Yeah, it will again go to trading account. Next, dividend received. This will also not have any balances, but dividend है, ऑपरेशनल इनकम नहीं है. सेल्स एक ही इनकम होता है जो ट्रेडिंग में जाता है, बाकी के जितने भी इनकम्स होते हैं वो सारे पीएनएल में जाते हैं. तो this will go in PNL. Okay, salaries. Okay, यहाँ पे भी 31st March. Salaries is also an expense relating to, not exactly relating to purchases and production. It's office related expense, so वो भी PNL में जाते हैं. Yes, yes. Chalo. So this will go to by profit. And lastly, donations. Donations is also an expense, but which is not related to your, it's not directly related to your business. So again, वो भी कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? P&L की trading, it will go in P and that you will, okay, how to determine that which balances go in trading or P&L, how to determine that अभी आपको बताने के लिए it will take a lot of time, and that is a discussion of at least 2 lectures what goes in trading and P&L. So that is part of your chapter final accounts. तो जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. एक सिंपल लॉजिक अगर मैं बताऊं तो जो चीज डायरेक्टली आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है
जो चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, और कुछ खर्चे जैसे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, जैसे वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, ये सब ट्रेडिंग में जाता है। बाकी के जितने एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, जैसे ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, सैलरीज हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, सेल्समैन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, इसके अलावा फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, जैसे टैक्स हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस पीएनएल में। ठीक है, तो अभी जैसे सैलरीज एक ऑफिस एक्सपेंस है तो इसलिए वो पीएनएल में जाए, सिमिलरली परचेज एक डायरेक्टली प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए वो ट्रेडिंग में जाए। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो पहले 2 लेक्चर्स तो यही डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये सोचने की जरूरत है। आई हैव अ डाउट इन कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन, यू गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, ऑलवेज, इवन आई गेट समटाइम्स, बट द पॉइंट इज the simple way to remember is that you are carrying this balance down. आप इस बैलेंस को लेके जा रहे हो और यहाँ पे बैलेंस आ रहा है पीछे से, right? So here the balance is brought and here from here you are carrying the balance down. ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऐसा याद रखो, C for closing, closing is closing balance is carried down. And you can remember B for beginning, so opening balance is brought down. Just to remove your confusion. तो 31 मार्च को ये बैलेंस में लिख रहा हूं, तो 1 अप्रैल को यहाँ पे जब बैलेंस शुरू होगा, वापस से कैश अकाउंट 1 अप्रैल को शुरू होगा, तो मैं बताऊंगा ना कि मेरे पास ऑलरेडी 1,03,000 का बैलेंस है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्च खत्म हुआ तब 1,03,000 का बैलेंस था, और अप्रैल में शुरुआत में क्या बोलूंगा कि जब अप्रैल शुरू हुआ तब उसमें 1,03,000 का बैलेंस था। तो यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। Yes, friends. We'll stop here. That should be it.